Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 20th August 2021. Today is in A2 day fund markets. Nifty is down around 120 points and Bank Nifty is also down around 500 points. And this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 23rd, 24th and 25th August. एंड ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 system. Before that, I'll give you brief introduction about TDF X1 system and our latest X2 system also. And this is X1 system, you can see here, and for options recently we have launched our X2 system. This is X2 system, so you can see here you got a sell signal here, and earlier we have a buy signal. Yesterday it could catch this big trend, and today there was no signal here. You can see in this consolidation it did not give you any fall signal. So this X2 system is for Bank Nifty options and Nifty options. You can trade all instruments with this stocks, commodities and forex markets. You can trade with this X2 system, but it is specially made for Bank Nifty and Nifty options. So if you are comfortable to trade with this system in futures also, you can trade. You can see here at the high of the day you got a sell signal. So ये देख सकते हैं आप almost day का high ये एरिया में आपको सिग्नल आया था, एंड यू कैन सी बड़ा ट्रेंड मिल गया आपको, एंड इसके पहले यू कैन सी दीज आर द सिग्नल्स, एंड दिस सिस्टम इज एक्सेलेंट फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शंस. इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन take this X2 system for Nifty and Bank Nifty options. And this X1 system is for futures and X2 system is for options. So with this X1 system you can trade all instruments and all markets. You can see here by default you will get data feed of NSE, MCX, NCDX, Forex and international markets. You can see many instruments here. एंड NSE का जो कैश का इंस्ट्रूमेंट्स है ये देख सकते हैं, आपको मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल. ऑलमोस्ट 400 स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता. लाइव 1 मिनट डेटा फीड आपको मिलता. बेस टाइम फ्रेम इज 1 मिनट टाइम फ्रेम. सो इसमें बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है. M1 इज फॉर इंट्राडे एंड M5 is for intraday and short swings, and M15 is useful both for intraday and swing trading. This is our preferred time frame. And if you want to catch bigger trends, you can even go for M30, H1, H4, etc. So किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. एंड इसमें आपको दो वर्जन मिलता. फर्स्ट वर्जन इज बेसिक वर्जन एंड सेकंड इज एडवांस वर्जन. सो बेसिक वर्जन में दिस इंडिकेटर विल नॉट कम. दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर. ये आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता. इफ इट इज इन पिंक कलर, हायर टाइम फ्रेम इज इन सेल मोड. If it is in blue color, higher time frame is buy mode. So in this Bank Nifty chart, whatever is higher time frame for 15 minutes, so that trend, that particular time frame trend, that is in sell mode. So this is the meaning of this indicator. And यहाँ पे देख लीजिए आपको एक oscillator. This is also part of advanced version. And at the bottom you can see one TDF Jones indicator. It is extremely useful and powerful indicator. So this indicator shows you whether that particular stock is in a trending zone or non-trending zone. So ये अप ट्रेंडिंग जोन है क्या, डाउन ट्रेंडिंग जोन है, या तो न्यूट्रल जोन है बोल के दिखाता. इफ इट इज इन ग्रे कलर, इट इज इन न्यूट्रल जोन. इफ इट इज इन ग्रीन कलर रिबन, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. सो ये पूरा सिस्टम वी हैव एक्सप्लेन अवर ट्रेनिंग वीडियोस. यू कैन गो टू अवर चैनल लाइव ट्रेड्स. इन दिस यू कैन सी वी हैव गॉट वन प्लेलिस्ट कॉल्ड TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस. सो इसमें आप सभी देख सकते हैं. आपको X2 का प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाया था, कल बनाएंगे. इसमें बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे देख लीजिए. आपको वीडियो नंबर 29 इज फॉर इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में काम करना बोलते हो, यू कैन सी दिस वीडियो. अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे बोलते हो, यू कैन गो थ्रू दिस वन. ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम, ट्रेडिंग रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग, बट विद डिफरेंट एग्जांपल्स वी हैव एक्सप्लेन देयर. और गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के दिस सिस्टम इज देयर. सो गैप ट्रेडिंग सिस्टम है ये. सो हमेशा आजकल देख लीजिए ऑलमोस्ट एवरीडे you are getting gaps, gap up or gap down will come. So gaps आए तो कैसे काम करना बोल के. So these two videos are important. And हमारा जो gaps है, those are different than textbook gaps. textbook में आपको breakaway gap या exhaustion gap ऐसा कुछ gaps रहता. But as per our system, our gaps are different. We have classified gaps as 4 types of gaps: fake gap, weak gap, real gap and harmless gap. So एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आता. एंड ऊपर देख सकते हैं आपको TDF X1 सिस्टम, ये TDF जोन्स और X1 बॉक्सेस के बारे में सेपरेट वीडियो है इंग्लिश में और हिंदी में. दिस जोन्स इंडिकेटर इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना बोलते हो भी, यू कैन यूज दिस TDF जोन्स इंडिकेटर. इससे आप बड़ा ट्रेंड को पकड़ सकते हैं. यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स विद दिस इंडिकेटर. एंड because of that we have launched recently one concept called investing with TDF Jones indicator. So यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु का वीडियो है, एक बार देख लीजिए. अगर आप H4 में और D1 टाइम फ्रेम में TDF Jones indicator से काम करते हो, you can catch big trends. So
एक बार वो वीडियोस देखे तो आपको आइडिया आ जाता है. So if you're option trader, you can go for X2 system, and X1 is for futures trading. So if you're interested, you can purchase these systems from tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी अपन चार्ट देखेंगे. दिस इज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट. इट क्लोज एट 35,062. I'll put period separator. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार देख लीजिए. इसके पहले मैं many times I have told you how to handle gaps. ये important point है. इसमें आपको दो पॉइंट्स है, गैप अप और रिजेक्शन. ये दो पॉइंट यहाँ पे है. सो मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, देख लीजिए. इसके पहले एक बाय सिग्नल चल रहा था बैंक निफ्टी में अपने पास, और उसके बाद यू गॉट अ सेल सिग्नल. इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन. सो अप ट्रेंडिंग जोन से सेल करने के लिए कंपल्सरली वी वांट बोथ सिग्नल्स, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. सो ये दोनों भी आ गया. सो व्हेन यू गेट दीज टू सिग्नल्स, फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड. तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिल्टर तो रेड है, कैंडल्स भी रेड है, और वो टाइम में बॉक्स भी रेड है. एक बार देख लीजिए, मैं माउस लगा रहा हूँ. सो यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन यू गॉट दिस एरो, जब आपको एरो आया था ये कैंडल के ऊपर, आपको एक बॉक्स रेड है. सो नीचे का बॉक्सेस देख लीजिए. ऊपर का बॉक्सेस विल शो यू ओनली लेटेस्ट कैंडल वैल्यू. सो नीचे का बॉक्सेस जहाँ पे अपन माउस लगाते हैं उसका वैल्यू दिखाता. सो यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन आई पुट माउस ऑन दिस वन, यू कैन सी वन रेड कलर बॉक्स. So filter candle box and both conditions, no, up trending जोन है तो we want both the sell signals. So सब conditions match हो गया था. So सब conditions match हो गए तो अपन क्या करते हैं, whatever is lowest point, उसके नीचे अपन 20 रुपीज का स्प्रेड निकाल के बैंक निफ्टी में सेल ऑर्डर लगाते हैं. If it is nifty, we will direct only 10 rupees. So this is spread. So these are all standard rules. So don't deviate from rules. So इसमें 5-10 पॉइंट के लिए आप ग्रीडी बन के डोंट सेल व्हेनेवर यू गेट दिस एरो. सो अपना कंडीशंस पूरा सैटिस्फाई होने के बाद में व्हाटएवर इज लोएस्ट पॉइंट उसके नीचे अपना सेल करते हैं. सो बैंक निफ्टी में अपना सेल ऑर्डर गॉट ट्रिगर्ड ऑन दिस डे एट दिस लेवल. ये लेवल के पास अपना सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया था. But because Bank Nifty was in uptrending zone, this is a weak sell signal, and it will give you pullback. This point we have been telling you many times, and whenever you get a pullback up to these dots, you have to sell one more lot immediately. And next day मान देख लीजिए, आपको एक buy signal मिल गया था because of this gap up. So whenever we get a gap up, so first thing we will see is whether it is fake gap or weak gap or real gap बोल के और normalized gap बोल के देखते हैं. So यहाँ पे देख लीजिए, when you got a buy signal, ये कलर भी चेंज हो गया था इसका कैंडल का, एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल आल्सो. सो दिस इज अ रियल गैप. सो रियल गैप है तो अपन क्या करते हैं, इसके हाई के ऊपर अपन बाय ऑर्डर लगाते हैं सब्जेक्ट टू अवर कंडीशंस. अपना जो फिल्टर कैंडल बॉक्स सब अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो इसके ऊपर अपन बाय ऑर्डर लगाते हैं. एंड चार्ट के ऊपर ये डॉट्स है तो डॉट्स भी बाय में आना चाहिए. सो यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन यू गॉट दिस गैप अप, ये गैप अप जब आया था, सो यहाँ पे एक डॉट आपको ग्रीन हुआ था, बट दीज डॉट्स आर नो 4 डॉट्स का सेट है ये. सो 4 डॉट्स में मिनिमम 3 डॉट्स ग्रीन होना चाहिए. सो 3 बोलो तो 1 2 3. सो ये थर्ड कैंडल जब तक फॉर्म हो गया, ये ऑटोमेटिकली अगेन इट चेंज इनटू रेड. सो इसको रिजेक्शन बोलते हैं अपन. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये मोस्ट फेवरेबल एंड प्रॉफिटेबल सेटअप है हमारा. सो दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन. इसके पहले मैं 4-5 वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सो कभी भी आपको ये एक या दो डॉट्स ग्रीन होने के बाद में इफ इट गेट्स रिजेक्टेड, रिजेक्शन हुआ तो क्या होता, ये 4 डॉट्स में मिनिमम 3 डॉट्स आना चाहिए. देन ओनली वी विल कंसीडर दैट एज ए वैलिड सिग्नल. बट ये 4 डॉट में 2 आने के बाद में फिर ये रिजेक्ट हो गए तो देन दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन. सो इसका मतलब क्या बोलते हो, ये जो गैप अप को या ये जो बाय सिग्नल को ये रिजेक्शन कर दिया बोल के उसका मीनिंग है. सो इमीडिएटली यू कैन सेल. ये आपको इसके पहले का वीडियो में क्लियरली बोला था. विथ स्मॉल स्टॉप लॉस यू कुड हैव सोल्ड बैंक निफ्टी हियर. दिस वाज एक्सीलेंट पॉइंट टू शॉर्ट बैंक निफ्टी व्हेनेवर दिस रिजेक्शन हैज हैपेंड. सो इसमें आपको 2 पॉइंट्स है. एक तो आपको गैप अप आया था, बट गैप अप में आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स वगैरह पूरा सेटिस्फाई हुआ, बट ये डॉट आए तो अपन इसके ऊपर बाय करते थे, बट वो बाय ट्रिगर नहीं हुआ. एंड सेकंड पॉइंट क्या बोलते, इसमें रिजेक्शन भी आ गया. सो बिकॉज ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे अपना एक ऑर्डर सेल था एंड यहाँ पे और एक ऑर्डर सेल था. सो इसमें देख लीजिए आपको डबल प्रॉफिट मिल गया आपको. सो विद दिस सिग्नल यू गॉट अराउंड 800 पॉइंट्स एंड विद दिस सिग्नल यू गॉट अराउंड 1000 पॉइंट्स हियर. दैट इज द रीजन यू हैव टू फॉलो रूल्स. सो ब्लाइंडली काम मत कीजिए या तो कुछ गेस वर्क करके काम मत कीजिए. इफ यू फॉलो द रूल्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट मनी. सो आवर एंट्री इज हियर बिकॉज ऑफ रिजेक्शन. और ये सिग्नल जनरली अपन सेल करने के बाद में एक बार ये पुल बैक यहाँ तक है तो, और वहाँ पे अपन इमीडिएटली सेल करते और अपना स्टॉप लॉस जो भी है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था उसके ऊपर अपन रिवर्स करते थे, बट डिड नॉट गो
above that level, so stop loss का problem नहीं है इसमें. So you got entry here, you got entry here, and you got profit. And as of now you can see higher time frame is supporting here. higher time frame ये 15 मिनट का जो भी higher time frame है वो भी आपको सेल में है, और filter is continuous red here, that means selling pressure है इसमें. एंड ये 3 boxes रेड है, सो बेरिश स्ट्रक्चर है इसमें. सो ऑल पुल बैक्स मस्ट बी शॉर्टेड इन दिस वन. इसमें एक ही माइनस पॉइंट है. व्हाट इज दैट माइनस पॉइंट इज, ये TDF ऑसिलेटर आपको जीरो क्रॉस ओवर हो गया. सो जीरो क्रॉस ओवर कभी भी ऐसा हो जाता, एक शार्प पुल बैक आता. सो ये पुल बैक में टेक इट टू अप टू दिस लेवल, यहाँ तक आए तो इमीडिएटली और एक बार शॉर्ट कीजिए. उसके बाद में इसमें बाई करने के लिए कंपल्सरली वी हैव टू गेट वन एरो, एंड फिल्टर भी ग्रीन होना, कैंडल्स भी ग्रीन होना, बॉक्स भी ग्रीन होना है. सो बहुत टाइम लगता है उसके लिए. सो ये डॉट तक आए तो मंडे मॉर्निंग फॉर एग्जांपल इफ मार्केट गोस अप, ये डॉट्स आपका ऐसा ऐसा आ जाता. सो डॉट के पास आप एक बार शॉर्ट कीजिए. सो वहां से देखेंगे अपना वैलिड सिग्नल आए तो फिर अपन बाई कर सकते हैं. सो एक पुल बैक आने का चांस है मंडे मॉर्निंग, एंड शॉर्ट दैट पुल बैक. लेट अस सी व्हाट विल हैपन ऑन मंडे. एंड अभी अपन निफ्टी का चार्ट देखेंगे. निफ्टी का चार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिए. सो इसमें एक्चुअली एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था. अप ट्रेंडिंग जोन वाज नो फ्रॉम समवेयर हियर. ये ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था, आई विल नॉट रिपीट अगेन. सो इसमें एक बाय सिग्नल चल रहा था यहाँ से, और यहाँ पे जो 4 सिग्नल्स है ऑल आर इनवैलिड सिग्नल. सो दिस सिग्नल एक्चुअली वी हैव गॉट ऑन फ्राइडे ओनली, नॉट फ्राइडे, Wednesday we got. And actually yesterday was holiday, and yesterday Singapore Nifty was showing you almost 300 points downfall in Nifty. But देख लीजिए नीचे आपको ये जोन्स इंडिकेटर है तो उतना इजीली मार्केट नहीं गिरता. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट दिस जोन्स इंडिकेटर उतना इजीली मार्केट फॉल, ऐसा बड़ा बड़ा डाउनफॉल्स नहीं आता. इवन इफ यू गेट अ गैप डाउन इट विल बी बाइंग प्रेशर विल कम अगेन. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको गैप डाउन तो आ गया, आपको इमीडिएटली यू गॉट बाइंग प्रेशर, और नीचे आया था फिर बाइंग आ गया, फिर नीचे आया था फिर बाइंग आ गया था. सो ये जो अप ट्रेंडिंग जोन में, इसके पहले लॉट ऑफ वीडियोस में मैं क्लियरली आपको बोला था कि इसमें साइन वेव स्ट्रक्चर आता. सो इसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक साइन वेव स्ट्रक्चर आया था, एंड मेनी पीपल ट्रैप्ड हियर, बट अपने पास कुछ भी ट्रैप ही नहीं है. सो बिकॉज ऑफ रूल्स यहाँ पे कुछ भी सिग्नल अपना ट्रिगर नहीं हुआ था. ऑल दिस आर इनवैलिड सिग्नल्स. एंड यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आने का चांस है. यहाँ पे देख लीजिए आपको फिर सेम साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस है. सो इसमें बहुत ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं. बट इफ यू हैव गॉट X1 सिस्टम देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रैपिंग. और इसमें whenever you have this पिंक कलर का ऐसा इंडिकेट रहा है तो whatever is your previous buy position you have to exit a position. So इसमें अभी as of now there is no position, अपना long position exit हो गया अपन. और इसके नीचे गए तो probably we may get some 100-200 points downfall, and from there again when this oscillator crosses zero line we may get one more buy signal. So Nifty chart is strong, but Bank Nifty chart is weak. और इसमें higher time frame is supporting, but boxes are not 3 boxes उसमें बैंक निफ्टी में बेरिश था, बट यहाँ पे एक ही बॉक्स है. सो इसमें स्ट्रेंथ है निफ्टी का चार्ट में, और बैंक निफ्टी का चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. एंड ऐसा रूल्स को फॉलो कीजिए. रूल्स को फॉलो करते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता आपको किसी भी चार्ट में. एंड लेट अस सी सम स्टॉक चार्ट्स नाउ. फर्स्ट चार्ट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर. सो इतना बड़ा डाउनफॉल में भी इतना बड़ा जो बहुत जने सोच रहे थे कि ब्लड बाथ आता मार्केट में बोल के, इवन देन देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन दिस वन. इसमें देख सकते हैं अपना बाय सिग्नल चल रहा था इसमें. एंड ये जो TDF जोन सिग्नल देख लीजिए आपको, इट वाज इन ग्रीन कलर. सो कंटिन्यूस इट वाज गोइंग अप. मॉर्निंग देख सकते हैं आपको थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, एंड अल्टीमेटली इट हैज गॉन वेरी बिग अप ट्रेंड. सो जब तक आपको ये ग्रीन कलर का जोन है उतना इजीली नहीं गिरता किसी भी स्टॉक या इंडेक्स. एंड इसमें इफ यू गेट अ पुल बैक अगेन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन. मंडे मॉर्निंग किसी भी रीजन से आपको गैप डाउन आए तो या पुल बैक आए तो एक बार बाय कीजिए, या डॉट्स तक आए तो और एक बार बाय कीजिए, एंड यू विल गेट प्रॉफिट. ट्राई टू बाय ऑल पुल बैक्स इन दिस वन. एंड नेक्स्ट चार्ट इज ICICI बैंक. ICICI बैंक में आई थिंक एक सेल सिग्नल है, एक बार देखेंगे. सो इसके पहले ये भी ट्रेंडिंग जोन था. ट्रेंडिंग जोन में है तो वी वांट F10 सिग्नल प्लस X1 सिग्नल दोनों आना चाहिए. नहीं तो अल्टरनेटिवली ये X1 सिग्नल नहीं आया तो भी ये इंडिकेटर आपको पिंक हो गए तो वी कैन सेल हियर. एंड इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया, एंड यू कैन सी इट इज इन प्रॉफिट. एंड एज ऑफ नाउ 3 बॉक्सेस रेड है, और स्टे भी सपोर्टिंग, और यहाँ तक पुल बैक आए तो और एक बार शॉर्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट देखेंगे जी में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था. यू कैन सी हियर we have got very good profit in this one. This was the sell signal, and बीच में यहाँ पे एक बाय सिग्नल था, बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. क्यों बोलते हैं यहाँ पे कैंडल्स कलर चेंज नहीं हुआ, ये डॉट्स भी आपको चेंज नहीं हुआ था. डॉट्स मस्ट कम इनटू बाय मोड, देन ओनली ये बाय लेते थे, बट यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था. एंड दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन. सो कंटिन्यूएशन में काम नहीं करते, इसमें और एक बार पुल बैक मिले तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं. इफ यू गेट अ पुल बैक अप टू दिस डॉट्स अगेन यू कैन शॉर्ट अप टू 176 आए तो एक बार शॉर्ट कीजिए.
एंड इमीडिएटली 3-4 रुपीज़ आने का चांस रहता। और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे एसबीआई में भी आई थिंक डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसमें एक्चुअली एक सेल सिग्नल चल रहा था फ्रॉम दिस लेवल, एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज एन अप ट्रेंडिंग जोन। सो व्हेन एनी स्टॉक इज इन अप ट्रेंडिंग जोन कंपल्सरली वी वांट एक्स1 सिग्नल आल्सो, नहीं तो अल्टरनेटिवली दिस मस्ट कम। सो ये पिंक हो गया था, सो दिस वाज द लेवल वेयर यू हैव टू सेल। सो अराउंड 428, सॉरी दिस लेवल इज आई थिंक 430, इसका लेवल 438। सो 438 के पास अपना सेल सिग्नल था। सो फ्रॉम 438 now it is at 405, almost 33 rupees का प्रॉफिट है इसमें। एंड इन बिटवीन यू कैन सी देयर वाज अ कंसोलिडेशन बट देयर इज नो फेक सिग्नल हियर। एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको इसमें जो नीचे का जो इंडिकेटर है इसमें, इफ यू हैव गॉट मोर देन 21 डॉट्स दैट इज कंसिडर्ड एज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो थोड़े स्टॉक्स में क्या होता बोलते हो, ये रिबन नहीं आता। सो रिबन यहाँ पे तो लेट आया था, सो उसके पहले ही आपको मोर देन 21 डॉट्स आया। सो दिस इज कंसिडर्ड एज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो दिस इज फर्स्ट ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन और ये सेकंड ग्रेड है। सो दोनों को सेम रूल्स है, बट इसमें ये सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन में थोड़ा फोर्स, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम रहता, और फर्स्ट ग्रेड में आपको स्ट्रेंथ अच्छा रहता। एंड एसबीआई में आपको पुल बैक मिले तो सपोज इफ इट कम्स टू 416 या 415 यू कैन शॉर्ट अगेन फॉर इमीडिएट प्रॉफिट ऑफ 4-5 रुपीज। एंड नेक्स्ट चार्ट देखेंगे एल&टी में एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, एंड इन दिस अप ट्रेंडिंग जोन यू कैन सी यू गॉट अ सेल सिग्नल। ये सिग्नल में तो थोड़ा प्रॉफिट है, बट दिस इज ओनली वीक सिग्नल। एंड ये चार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, ये TDF फॉस्फेट 0 क्रॉस ओवर हो गया था। सो एक शार्प पुल बैक आने का चांस है, वो पुल बैक में बाई करने का ट्राई कीजिए। दैट पुल बैक शुड टेक इट टू अगेन दिस लेवल। सो अगर आपको मार्केट स्टेबलाइज हो गए तो एल&टी इज द फर्स्ट वन टू गेट बाई सिग्नल एंड स्टार्ट अप ट्रेंड अगेन। क्यों बोलते हो, इसके पहले अप ट्रेंडिंग जोन में था। सो अप ट्रेंडिंग जोन में एंट्री करने के बाद में दिस सिग्नल इज ओनली वीक सिग्नल, और एक बार ऊपर जाने के ट्राई करता। सो वेट फॉर न्यू बाई सिग्नल इन दिस वन, एंड ऑल कंडीशन सैटिस्फाइड तो अपन इसमें बाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चार्ट इज इन्फोसिस में बाई सिग्नल चल रहा था, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। इसके पहले का वीडियोस में भी मैं दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिए बड़ा ट्रेंड है आपको ऑलमोस्ट फ्रॉम 1550। सो फ्रॉम 1550 से अभी 1730 है, इसमें देर इज नो डिस्टर्बेंस। सो ऑल पुल बैक्स आर बीइंग बॉट इन अप ट्रेंडिंग जोन। ये जनरली ऐसे ही होता है, अप ट्रेंडिंग जोन है तो हर पुल बैक में बाइंग प्रेशर आता है। मार्केट स्टेबलाइज हो गए तो यू कैन वेट फॉर वन मोर राउंड ऑफ अपसाइड ईयर। क्यों बोलते हो, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग एंड रूपी वीक हो रहा, दैट इज द रीजन आपको आईटी सेक्टर का स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग मार्केट। एंड बिकॉज ऑफ इन्फोसिस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए निफ्टी नहीं गिर रहा, बैंक निफ्टी वाज वीक। सो बैंक्स आर गोइंग डाउन बट अदर स्टॉक्स आर नॉट गोइंग डाउन। एंड नेक्स्ट देखेंगे अरविंदो फार्मा, इसमें भी एक सेल सिग्नल था अपने पास। सो दिस वाज सेल सिग्नल एंड इसमें यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। एंड ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, सो ऑल पुल बैक्स आर बीइंग शॉर्टेड हियर। एंड इफ यू गेट वन मोर पुल बैक अप टू दिस लेवल, ये 734 वहाँ तक आता नहीं आता डाउट है, बट अगर आए तो वहाँ पे शॉर्ट कीजिए। डॉट्स तक आए तो इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। सो डॉट्स आर वेरी गुड पॉइंट्स टू टेक अ शॉर्ट पोजिशन। सो वेट फॉर पुल बैक एंड सेल इन दिस वन। एंड दिस इज द पावर ऑफ जोन्स इंडिकेटर। देख लीजिए आपको जब ऐसा डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, इट इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन ऑलमोस्ट। ये कहाँ से सिग्नल चल रहा है अपना, आई थिंक 905। सो 905 से 681, सो 220 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसमें। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉफिट। सो दिस इज द पावर ऑफ TDF जोन्स इंडिकेटर। सो ये TDF जोन्स इंडिकेटर्स यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स, सो दैट्स द मेन पॉइंट टू नोट हियर। एंड नेक्स्ट चार्ट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में एक्चुअली इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन, सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन में था ये। एंड यू गॉट अ सेल सिग्नल एंड ये लेवल के पास वो ट्रिगर हो गया था, यू गॉट गुड प्रॉफिट इन दिस वन। ये TDF फॉस्फेट 0 क्रॉस होने के बाद में एक पुल बैक तो आ गया, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू टेक ए टू फॉर्म ए बाई सिग्नल। सो यहाँ पे और एक बार पुल बैक मिले तो अप टू 995 इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, 20 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाता। फिर उसके बाद में देखेंगे एज ऑफ नाउ इसमें 21 तो नहीं आया, 5, 10 ही आया आपको। 21 आया तो दिस इज कंसिडर्ड एज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन। इसमें हायर टाइम फ्रेम में सपोर्टिंग 3 बॉक्सेस रेड है, सो एवरीथिंग इज फाइन। सो पुल बैक में शॉर्ट कीजिए। सो वी आर गेटिंग सेल सिग्नल्स इन बैंक स्टॉक्स एंड Infosys and Hindustan Unilever, we are getting buy setup, so that is important point to note here. That is the reason Nifty is strong and Bank Nifty is weak. And the next chart देखेंगे Scots. So ऐसा different sectors का chart मैं बता रहा हूँ, many stocks are here, so it is not possible to show all charts in each and every video. So trading system is same for all markets, so इसमें rules follow करना चाहिए. सॉफ्टवेयर को ये मालूम नहीं होता कि this is Scott chart, ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है बोल के मालूम नहीं होता. So whatever formula that we have written, based on that it will give you buy and sell signals.
So don't think that only we are showing some selected stocks here. Generally I've got all Nifty stocks in this system. That is the reason I'm trying to show you all these stocks here. So यहाँ पे देख लीजिए आपको, it was an uptrending zone and ये सेल सिग्नल आया था, बट अपट्रेंडिंग जोन सेल करने के लिए कंपल्सरी ये भी चाहिए, ये भी आ गया. सो यहाँ पे सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया एंड यू गॉट गुड प्रॉफिट इन दिस वन. इसमें भी फिल्टर इज कंटिन्यूस रेड हियर, सो एक पुल बैक मिले तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, अगेन यू विल गेट प्रॉफिट देयर. एंड नेक्स्ट चार्ट इज जुबिलेंट फूड्स. जुबिलेंट फूड्स में बाय सिग्नल था फ्रॉम दिस लेवल एंड इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट एंड एज ऑफ नाउ इट इज इन अपट्रेंडिंग जोन. अपट्रेंडिंग जोन में देख लीजिए, यू गॉट ए सेल सिग्नल, बट एक सिग्नल से काम नहीं चलता. इसमें सेल करने के लिए कंपल्सरली F10 भी चाहिए प्लस X1 भी चाहिए, दोनों आए तो अपन इसमें काम करते. सब्जेक्ट टू फिल्टर कैंडल बॉक्स बिकमिंग रेड एंड ये डॉट्स भी रेड होना चाहिए. सो वो सब अभी सेटिस्फाई होने का टाइम लगता है. सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू टेक ए लॉन्ग पोजीशन. सो यहाँ पे एक बार बाई कीजिए इफ यू गेट सेम लेवल ऑन मंडे, और वहाँ से ये लेवल और एक बार क्रॉस होने का चांस है. सो ये सिग्नल के लिए डरने की जरूरत नहीं है. सो रूल्स को फॉलो कीजिए, एरो आते ही सेल नहीं करना, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन ओनली वी कैन सेल. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको 3 बॉक्सेस ग्रीन है और अपट्रेंडिंग जोन है एंड स्टे भी सपोर्टिंग. सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू टेक ए लॉन्ग पोजीशन. और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे टाटा केमिकल्स. टाटा केमिकल्स भी इट वाज इन अपट्रेंडिंग जोन. इसमें भी एक छोटा पुल बैक है, देख लीजिए आपको ये अपट्रेंडिंग जोन में था एंड as I told you to sell this uptrending zone, we want this one plus this one या this one आना चाहिए X1 सिग्नल. तो यहाँ पे X1 तो नहीं है, so you got no arrow plus this one. So ये लेवल के पास सेल ट्रिगर हो गया था, but it's a weak sell signal as I have been telling you. अपट्रेंडिंग जोन में जो भी सेल आता that is weak sell signal. एक बार नीचे ऑसिलेटर जीरो क्रॉस हो गया तो एक शार्प पुल बैक आता, दैट पुल बैक में बाय सिग्नल मिला तो. और एक बार देख लीजिए अगेन दिस लेवल 894 में क्रॉस इन दिस वन. और इंटरनेशनल चार्ट भी एक बार देखेंगे. दिस इज यूरो यूएसडी, अपना X2 सिस्टम का चार्ट है ये, और किसी में भी आप काम कर सकते हैं, X1 से काम कर सकते हैं. एंड ये डो जोन्स का चार्ट है, सेल सिग्नल है इसमें, इट गॉट ट्रिगर्ड समवेयर हियर एंड एज ऑफ नाउ पुल बैक आ रहा. सो देखेंगे ये तो 5, 10, 15, 21 तो नहीं आऊँगा. लेट अस सी 8, 21 शायद एक दो डॉट आए तो 21 आता. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में चले जाता. ये तो सेल सिग्नल में है और डाउन ट्रेंडिंग जोन में था, बट it is trying to come up pull back आ रहा Nasdaq में. let us see what will happen. and gold का चार्ट ये हमारा X2 का सिस्टम है. so if you are interested you can trade this one with X1 और X2. सिल्वर का चार्ट में देख लीजिए डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा. क्रूड ऑयल का चार्ट में भी सेल सिग्नल चल रहा है एंड यू कैन सी हियर डाउन ट्रेंडिंग है इसमें. so this was the area where to sell and all pullbacks can be shorter in crude oil. सो इंडियन मार्केट में देख लीजिए दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट. ये लेवल ब्रेकडाउन हो गए तो सेल आ जाता निफ्टी में, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी सेल में है. सो पुल बैक आए तो बैंक निफ्टी में एक बार शॉर्ट कीजिए एंड ये डॉट तक आए तो इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हैं. एंड देख लीजिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो एंड एज आई टोल्ड यू ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम फॉर ऑल मार्केट्स एंड ऑल आवर वीडियोस विल कम विद यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट you can subscribe to our channel. If you subscribe to our channel, you will get notification whenever we upload videos. And हमारा वेबसाइट देख लीजिए livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है. बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ स्पेशलिटी, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स. अगर आपके पास 10 lakhs कैपिटल है तो विल शो यू सिस्टम टू मेक एटलीस्ट 1 lakh पर मंथ विथ सेफ हेजिंग स्ट्रेटजी. सो इंटरेस्ट है तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं. और ऑप्शंस में काम करने के लिए यू कैन टेक दिस वन. बैंक निफ्टी में देख लीजिए इट हैज गॉट ऑलमोस्ट टर्निंग पॉइंट. निफ्टी में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सेल सिग्नल था एंड आज आपको एक बाय सिग्नल था यहाँ पे एंड सेम लेवल ये ऑलमोस्ट नो बिकॉज ऑफ टाइम डिके देयर विल बी नो लॉस इन दिस वन. सो सेम लेवल पे आपको एग्जिट मिल गया था. सो इवन इन दिस कंसोलिडेशन देयर इज नो फेक सिग्नल इन दिस वन. सो X2 system is best for option trading and X1 system is best for futures trading. So if you are interested you can take both systems or any of the system which you like, and we'll meet in next video. Thanks for watching.